Hello everyone, welcome to DA Lectures. In this particular video, we will be looking at certain example questions of master method for your practice. And before starting this video, if you haven't studied the basic of recurrence and what is master method and all the cases and extension of master methods, so I will be advising you to first watch the recurrence playlist from the beginning and then go for this particular video. So this includes certain important questions related to master method. So let's start. See, in examination, what you will be giving, what you will be given with is some recurrence equation of this particular type. So अभी जो question आपको given है, that is t of n is equals to t n by 2 plus 2 raised to the power n. So the first thing what we do in master method is write down the given data. Right? For the formula, we require three variables, that is a, b and f of n. Here a is equals to 1, b is equals to 2 and f of n is equals to 2 raised to the power n. Right? इसीलिए I was telling you, if you do not know the basics of master method, so first go and watch that particular video. So here the given data is this. Now the next step is we have f of n. What we need to create over here is g of n. So in master method, the formula for g of n is n raised to the power log a base b. Putting the value of a and b in the expression, we will getting g of n as equals to 1. राइट, बिकॉज log 1 is equals to 0. So हमारे पास g of n की जो वैल्यू आती है that came out to be 1. Now the next step in master method after generating g of n is comparison of f of n and g of n, so that we can identify which case of master method is going to apply over here. So on comparing, it is very evident that f of n is greater than n raised to the power log a base b, because f of n is 2 raised to the power n. और अगर n की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, see n is always greater than 0, right, and it is a positive value. So अगर मैंने n की वैल्यू 1 भी रखी, then f of n will be 2 and g of n is 1, right, और increase करते जाएंगे n, तभी भी it is evident that f of n will be greater. So when f of n is greater, which case of master method is applied? The third case of master method, that stands for omega, which is the बेस्ट केस एनालिसिस. सो हमारा मास्टर मेथड का थर्ड केस यहाँ पर अप्लाई होता है. देखते हैं थर्ड केस क्या कहता है. थर्ड केस को आइडेंटिफाई या फिर प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक रेगुलरिटी कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन. दैट इज ए एफ एन बाय बी शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन, वेयर सी इज लेस देन 1. So let us put the values. So what we did, we put the values of a, b and f of n. तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है इनइक्वालिटी वो कुछ इस तरीके से आती है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो जो c की वैल्यू रिलेटेड रहती है दैट इज 2 raised to the power minus n by 2. Right? So over here what we will be doing is putting different values for n की वैल्यू 1 रखते हैं तभी भी c पॉइंट्स में आता है, n की वैल्यू 2 रखते हैं तभी भी c पॉइंट्स में आता है. तो n की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज करते जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव पावर है तो c की वैल्यू और कम होती जाती है, तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 1. सो यहाँ पर हम लोग रेगुलरिटी कंडीशन प्रूफ कर पाते हैं, एंड हेंस एज पर द case 3 of master method, we can say that the time complexity is equals to theta of f of n, which is nothing but 2 raised to the power n. So that is how we solve the cases of master method. Let's go to another example so that this master method becomes very clear to you all. Again एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज t of n is equals to 10 t n by 3 plus 17 n raised to the power 1.2. राइट, तो एक और रेकरेंस है जिसे मास्टर मेथड से सॉल्व करना है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, अपने गिवन डेटा को लिखेंगे. तो गिवन डेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 3 और f of n हमारे पास क्या है 17 n raised to the power 1.2. राइट, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, f of n है, g of n फाइंड आउट करना है, और मास्टर मेथड में g of n का फॉर्मूला होता है n raised to the power log a base b. तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. यहाँ पर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग के फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट n raised to the power log 10 base 3 with the help of a calculator. फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा log 10 डिवाइडेड बाय log 3.
ठीक है, तो वैल्यू को बेस के साथ डिवाइड करते हैं दोनों का लॉग लेते हुए, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ शॉर्ट ट्रिक विच इज एज फॉलोज. हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें कंपेयर करना है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारा जी ऑफ एन आया है उससे रिलेटेड जो लॉग की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. देखिए मेरे पास जी ऑफ एन क्या है, लॉग 10 बेस 3. तो बेस क्या है मेरे पास 3. अब 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9, राइट. 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9. और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, और 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और ये जो लॉग बेस 3 होगा दैट विल बी नलिफाइड टू 1. तो जो आंसर आएगा दैट विल बी n स्क्वायर. ये एविडेंट है, दैट इज द बेसिक, बहुत मिनिमल लॉग की कैलकुलेशन है. तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो log 10 की वैल्यू बड़ी होगी या log 9 की वैल्यू बड़ी होगी. इट इज एविडेंट दैट log 10 विल बी ग्रेटर देन log 9, राइट. और log 9 की वैल्यू क्या है n स्क्वायर. तो इट इज एविडेंट कि जो log 10 होगा वो n स्क्वायर से बड़ा होगा. सी what द कैलकुलेशन इज, हमें कंपेयर करना है f ऑफ n को और g ऑफ n को. तो देखिए यहाँ पे log 9 की वैल्यू n स्क्वायर है, तो जो log 10 की वैल्यू होगी वो n स्क्वायर से बड़ी होगी, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 9. तो सिमिलरली हम जो कंपैरिजन कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है. जो पावर log 10 की आएगी वो 2 से बड़ी होगी. देखिए n स्क्वायर जो आ रहा है, जो पावर 2 आ रही है वो log 9 के लिए आ रही है, और 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1.2. तो इट इज एविडेंट कि जो g ऑफ n है वो हमारा जो f ऑफ n है उससे बड़ा होगा, क्योंकि 2 बड़ा है 1.2 से, और जो log 10 की वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी होगी, राइट. सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट जो f ऑफ n है दैट विल बी अ स्मॉलर वैल्यू. और जब f ऑफ n स्मॉलर होता है और g ऑफ n हमारे पास बड़ा होता है तो मास्टर मेथड का केस नंबर 1 लगता है, और जो हमारा आंसर आता है वो आता है जो आंसर आता है वो आंसर आता है g ऑफ n, दैट इज n रेज़ टू द पावर log 10 बेस 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अगर आप क्वेश्चन में log की वैल्यू सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से नियरेस्ट log के साथ कंपेयर करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज अ वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. आई थिंक दैट इज नाउ क्लियर टू यू ऑल. एक और क्वेश्चन देखते हैं. See, I will be covering very many questions in this particular slide, so that आप लोगों को जितने भी variety of questions हो सकते हैं मास्टर मेथड के वो clear हो जाए, राइट. तो एक और इक्वेशन आप लोगों के स्क्रीन पर है, दैट इज टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2tn/4 प्लस रूट एन. रूट एन होता है आपका n की पावर हाफ, ठीक है. तो फिर पहला स्टेप गिवन डेटा रखना है, दैट इज नथिंग बट a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, और f ऑफ n इज रूट एन, दैट इज n रेज टू द पावर 1/2. अब f ऑफ n है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे को g ऑफ n फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब g ऑफ n फाइंड आउट करने का मतलब है n रेज टू द पावर log a बेस b, वैल्यू पुट करा. अब यहां पर देखिए लिटिल बिट ट्विस्ट इन दिस लॉगरिथम. अभी तक जितनी भी पावर होती थी उसके अंदर a परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होता था, तो हम उसको बेस की पावर में तोड़ के मल्टीप्लिकेशन में ले आते थे, तो यू नो द सॉल्यूशन बिकम्स इजी. लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे जो बेस है वो आपके a का जो है a वैल्यू जो है 2 है उसका परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसको सॉल्व करने का तरीका इज वेरी सिंपल. फॉर्मूला भी होता है लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. जैसे 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, लेकिन बेस में है तो पावर हाफ हो गई. सपोज यहाँ 4 की जगह 8 होता तो वो क्यूब होता, तो पावर n की 1/3 हो जाती. सपोज b की जगह 16 होता तो 2 की पावर 4 आता है 16, तो पावर 1/4 हो जाती, ठीक है. तो यहां पर अगर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 होती तो आंसर आता n स्क्वायर, लेकिन वो फ्लिप हो गए. अभी आपका बेस बड़ा है और आपकी जो a की वैल्यू है दैट इज स्मॉलर, तो वो जो स्क्वायर है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में आ गया, वो रेसिप्रोकल हो गया आपका. तो आप इस तरीके से उसको रिमेंबर कर सकते हैं. ऑल्दो हमारे पास उसका डिफाइंड फॉर्मूला होता है लॉगरिथम में, जो आपकी स्क्रीन पर है. सपोज कुछ इस तरीके से है दैट log 2 बेस 4 इज इक्वल्स टू x है, तो वो फॉर्मूले के फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है. अगर वो इस तरीके से है a बेस b इक्वल टू y, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जो बेस होती है उसकी पावर बना देते हैं जो आंसर होता है, राइट. सो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंगली अगर मेरे को अब x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हाफ आएगी. तो मैंने आपको लोगों को डायरेक्टली बता दिया था, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है बेस तो हाफ कर दीजिए, क्यूब है तो 1/3 कर दीजिए, पावर 4 है तो 1/4 कर दीजिए, एंड
दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लिटिल बिट थोड़ा सा ट्विस्ट था लॉग में, तो मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। अब क्योंकि अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो दोनों की सेम है, जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन दोनों सेम आता है, तो मास्टर मेथड का केस नंबर 2 लगेगा हमारे पास यहाँ पर। और 2 की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एन। तो जी ऑफ एन इज एन रेज टू द पावर हाफ, दैट इज रूट एन, एंड वी विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय लॉग ऑफ एन एंड गेटिंग द आंसर। तो दैट वाज वन मोर क्वेश्चन। सो बिकॉज मैं इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। And I will be advising you guys to just pause the video after each and every question and just note it down for your remembrance कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन की वीडियो में मैंने 3 एग्जाम्पल्स कवर करे थे, जिसके अंदर मेरे एक्सटेंशन का केस नंबर 1 और 2 कवर हो रहा था, बट केस नंबर 3 कवर नहीं हो रहा था। तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन, जिसके अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ एन है दैट इज नॉट पॉलिनोमियल, दैट इज लॉगरिथम, और डिवीजन में है हमारा लॉग, और लॉग की पावर है 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल जो हमारे डिफाइंड स्टेप है उसी के हिसाब से चलेंगे। ए की वैल्यू जो है हमारे पास, हम उसको लिखेंगे 2, बी की वैल्यू को लिखेंगे अगेन 2 गिवन फ्रॉम द डेटा, और एफ ऑफ एन को रीराइट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में रीराइट करेंगे एफ ऑफ एन। कैसे? एफ ऑफ एन की पावर ऊपर ले जाएंगे और उसको -2 स्क्वायर लिख देंगे। तो हियर नाउ एफ ऑफ एन विल बी एन रेज टू द पावर 1 लॉग रेज टू द पावर -2n। ठीक है, तो यहां पर एक्सटेंशन कब लगता है? व्हेन एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या एफ ऑफ एन जी ऑफ एन का लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन फाइंड आउट करते हैं। अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, एन रेज टू द पावर लॉग ए बेस बी। ए और बी की वैल्यू रखी 2, तो आंसर आया एन रेज टू द पावर 1। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं एग्जैक्टली जो जी एफ ऑफ एन है हमारे पास, दैट इज जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ लॉग ऑफ एन, और लॉग की पावर क्या है? -2। तो हमारे पास जो लॉग की पावर आती है यहाँ पे वो आती है -2। तो k क्या है? लॉग की पावर, दैट इज इक्वल्स टू -2। अब -2 जो है वो -1 के साथ अगर मैं बात करती हूँ, रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर एक्सटेंशन की वीडियो प्लीज देख लीजिएगा और सारे फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो केस लगता है हमारे पास, वो केस लगता है 2.3, दैट इज एक्सटेंशन का थर्ड फॉर्मूला, जो हमें कहता है कि अगर हमारे पास k की वैल्यू -2 हो, -3 हो, -4 हो, राइट, अगर इस तरीके की वैल्यू हो तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो g ऑफ n के इक्वल होती है, दैट इज थीटा ऑफ g ऑफ n। तो हियर द g ऑफ n इज n, सो जो हमारा आंसर आता है दैट इज theta of n. So again I will be repeating before watching this video, please go and watch the complete series of the videos for recurrences, so that each and every question be clear to you all. So that was very simple question which was for the extension of master method, and the answer was again g of n. So let us do one more question, because मैंने इसमें 5 questions रखे हैं ताकि मैं master method के सारे cases को cover कर सकूं. Again yet another recurrence on your screen, that is t of n is equals to t 9n by 10 plus n. Remember, जब भी हम लोग देखते हैं कि मास्टर मेथड फेल हो रहा है, तो वो मास्टर मेथड फेल तब होता है जब a फ्रैक्शन में हो, b कैन बी इन फ्रैक्शन, राइट? तो ओनली व्हेन a इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ n, a इज फ्रैक्शनल या f ऑफ n नेगेटिव हो, तभी मास्टर मेथड फेल होता है। b कैन बी इन फ्रैक्शन बिकॉज वो लॉग का बेस है, तो जितने लॉग के वैलिड बेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, b की वैल्यू उतनी हो सकती है, क्योंकि मेरे को g ऑफ n पर्टिकुलरली a और b से निकालना होता है। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन b की वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो गई, दैट इज 10 by 9, एंड f ऑफ n इज n एंड a इज 1 एज पर दी रेकरेंस इक्वेशन। तो f ऑफ n है तो मुझे g ऑफ n फाइंड आउट करना है, तो g ऑफ n का फॉर्मूला log a बेस b, वैल्यू पुट करी, log 1 इज 0, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है n की, सॉरी g ऑफ n की, दैट इज केम आउट टू बी 1।
ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को, दोनों को कंपेयर करा तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एन इज ग्रेटर। एफ ऑफ एन अगर बड़ा होता है तो मास्टर मेथड का हमारे पास केस नंबर 3 लगता है, तो रेगुलरिटी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद जो सी की वैल्यू आती है वो 1 से छोटी आती है। दैट मीन्स केस नंबर 3 इज वैलिड, रेगुलरिटी और द नेसेसरी कंडीशन इज ऑल्सो वैलिड। तो हम केस नंबर 3 मास्टर मेथड का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एन के इक्वल होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन के इक्वल है, तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n. So that was all, with such questions of master method. In this video I tried to cover all the possibilities of master method, and I think now the questions will be clear to you all and you can solve different questions. So thank you for watching the video. I shall be seeing you in the next lecture.